नमस्ते, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबको दशहरा और गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज का दिन हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद दिलाता है। रियल विक्ट्री बाहर नहीं, अंदर की बात होती है। दशहरे में हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है और गांधी जयंती हमें ये याद दिलाती है कि असली ताकत सच और अहिंसा में है और दोनों का कनेक्शन है इमोशनल मास्टरी। इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, signals from your mind body system that tell us how we are experiencing life. They are not good or bad, they are just messengers. They can be joy, love, excitement. This shows them, like, no, they show alignment with our values. We feel happy when we have joy. We are when we experience joy, we experience love and excitement, and at the same time we experience anger, fear, sadness. That shows, unmet needs, boundaries crossed, or wounds that are unhealed. Emotions are like visitors, not owners. They knock us something. They knock to show us something, but we decide whether to let them rule our home or drive them out. It's in our control. So let's talk about how do emotions impact us. So first of all, physically, we have stress hormones like the cortisol, the adrenal. They rise when we stay in anger, fear, or worry. Similarly, positive emotions release endorphins, oxytocin, and boost immunity. Mentally, emotions shape our thoughts. Anger narrows our focus. We are not able to focus when we are angry, and love expands the perspective. Let's see how they affect our relationships. How we express emotions impacts trust, connection, and harmony. Decisions like emotional states often guide choices more than logic. When we are not in our emotional, when we are misaligned, what will happen? We don't go with our logic. We are actually a misaligned soul that time. So we just whatever comes to our mouth, we just speak out, and many times we regret. Also, life quality. Repeated emotional patterns create habits, and habits create destiny. So, emotions don't just happen to us, they happen through us, and they shape the story of our life. बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अंदर की लड़ाई जीतना ज़रूरी है। अब सोचिए कितनी बार किसी बात पे हम रिएक्ट करते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, और कितनी बार हम अपने पुराने दर्द को सालों तक कैरी करते हैं। Emotional mastery is very vast topic. I may not be able to not be able to make justice to this topic in just few minutes, but whatever I share today is just 0.000.5% of how I handhold and help my clients to master their emotions. If you want to connect with me, then type emotions to connect with me for one-on-one sessions. लेट मी स्टार्ट विद अ स्टोरी, बिकॉज स्टोरी से हमारी जो इंट्रैक्शंस है या फिर हमारा जो मैं जो भी कहूँगी उससे आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो. सो हियर द स्टोरी इज़ अबाउट एन अनस्पोकन हर्ट. किसी ने हमसे कुछ कहा था या किया था बहुत सालों पहले या अभी कुछ साल पहले, शायद बचपन में या कुछ, या फिर तब जब हम मतलब इतने बोल्ड नहीं थे कि हम उस वक्त कुछ कर पाते, लेकिन हमने उस बात को पकड़ के रखा है और उस दर्द को कभी रिलीज़ ही नहीं किया है. और जब भी सिमिलर सिचुएशंस आती है, वो जो बात है ना, वो फिर से हमको ट्रिगर होती है. वो जो फीलिंग
जो पुरानी फीलिंग हमने पकड़ के रखी है ना, वो ट्रिगर होती है। और जब भी ट्रिगर होती है तो हमारा जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत ही अलग किस्म का होता है। वी आर बिकॉज वी वर नॉट एबल टू यू नो पास्ट में, क्योंकि हम अपना मतलब रिएक्ट नहीं कर पाए थे या फिर हम बराबर से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। कई बार हम सिर्फ फ्रीज हो जाते हैं ना, वी डोंट नो व्हाट टू डू, क्या सही है क्या गलत है, हमें नहीं समझ में आता है उस टाइम पे। बट आफ्टरवर्ड्स वी डू रिग्रेट कि भाई हमने उस टाइम पे एक थप्पड़ क्यों नहीं खींच के दे दिया उस इंसान को, या फिर हमने कुछ बोला क्यों नहीं। नो, यू फील ऑल दोज थिंग्स इनसाइड यू, यू कैरी ऑल दोज इमोशंस कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। सो वो पुरानी जो भी छोटी छोटी बातें हैं, तो वो हम बहुत सालों तक कैरी करते हैं। सो पुरानी छोटी सी बात आज भी हमारे डिसीजन और रिएक्शन को कंट्रोल करती है। जब तक हम उसे रिलीज़ नहीं करते, तो वो हमारे लिए मतलब एक बर्डन बन जाती है। कई बार हम देखते हैं कि भई हम कई बार हमें वो दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ना कंधे बहुत दुख रहे हैं, या फिर हमारी पीठ या फिर हमारी कमर बहुत दुख रही है। कई बार हमारे जो इमोशंस हैं वो कहीं न कहीं अटके होते हैं, इसके वजह से भी कई बार हमको वो दर्द होता है। So I would invite you to do this activity with me. तो ये दोनों हाथ जो है वो आपके ऐसे ऊपर लाइए और इनको ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे पकड़िए जैसे ये सारे जो आप पकड़ रहे हो ना, ये सारे आपके इमोशंस हैं जो आप कैरी कर रहे हो, इतने सालों से कैरी कर रहे हो। अब आप क्या करोगे? 1 2 3 फुश, 1 2 3 फुश, 1 2 3 push. Just let go and release the past hurt and guilt that you are carrying from such a long time. Please don't take it to your deathbed. How are you feeling? ये एक्टिविटी करने से आपको कैसा लग रहा है? कुछ हल्का महसूस हुआ? प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ अच्छा हल्का महसूस हुआ। लेट मी शेयर अनदर स्टोरी। तो अक्सर एक मियाँ बीवी में एक नोक झोंक होती ही रहती है अक्सर, राइट? तो बीवी ने बड़े प्यार से दिन भर है ना अपने उन्होंने सोचा कि भाई आज एक स्पेशल डे है तो मैं अपने हस्बैंड के लिए एक स्पेशल खाना बनाती हूँ। और वो दिन भर वो डिश बनाने में लगी रही और बहुत मेहनत करके उन्होंने वो डिश को बनाया, ये सोच के कि मुझे एक छोटी सी एप्रिसिएशन तो मिलेगी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश होंगे ये खा के। एंड दैट इज़ व्हाट शी ऑल लाइक हैड इन माइंड। बट जब उन्होंने हस्बैंड आए और उन्होंने खाना खाया और खाने के बाद में वो बोलने लगे नमक थोड़ा ज़्यादा है। अब वाइफ़ को लगा मैंने इतना ज़्यादा मेहनत की है सुबह से, इतनी मेहनत करके मैंने इतनी टेस्टी खाना बनाया और ये मेरी कम से कम एक तारीफ़ भी नहीं कर सके कि भई अरे आपने कितना अच्छा मेहनत की है और कितना अच्छा खाना बनाया और उनको सिर्फ़ ये इसमें नमक ज़्यादा लग रहा है। सो व्हाट इट फील्स व्हाट हैपेंस, ऐसे टाइम पे हम रिएक्ट करते हैं। ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, इनका तो कुछ भी नहीं हो सकता, इनके लिए तो कभी कुछ बनाना ही नहीं चाहिए। फ़ुज़ूल के मैंने अपना टाइम वेस्ट किया इनके पीछे, राइट? Many of us feel that way. So अब क्या है, अगर आपको आपने अपने दिमाग में जो स्टोरी बोली है ना, वॉट एवर स्टोरी यू आर टेलिंग योर सेल्फ बिकम्स द ट्रिगर। नाउ दैट कैन बी टर्न्ड इनटू एंगर और हर्ट। ये जो है आपने मतलब एक वो जो इंसिडेंट हुआ वो आपने पकड़ लिया। अब वो पकड़ के वो जो है वो एंगर में भी आप उसको मतलब ये कर सकते हो, एज अ गुस्से में ले सकते हो या फिर उसको एक हर्ट की तरह कैरी कर सकते हो कि अब मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं बनाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी थिंग फ्रॉम फॉर हिम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और या फिर आप पॉज़ और रिफ्रेम कर सकते हो। तो लेट मी टेल यू द मैजिक ऑफ पॉज़ एंड रिफ्रेम। कई बार जब भी हमको ट्रिगर होता है या जब भी हमको गुस्सा आता है, हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे हाथ में 2 चीज़ रहती है, या तो आप रिएक्ट कर सकते हो या फिर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो रिएक्ट करना किसको बोलते हैं? जब आप इंस्टेंटली जवाब देते हो। इन्होंने मुझे ऐसा बोला, अच्छा अभी मैं दिखाती हूँ इनको। अभी इन्होंने मुझे ये बोला कि नमक ज़्यादा था, ठीक है अभी मैं नेक्स्ट टाइम से उनके लिए कभी कुछ नहीं बनाऊँगी। दैट्स व्हाट इज़ द रिएक्शन। बट लेट्स चेंज इट टू समथिंग एल्स।
आपने उस टाइम पे पॉज़ किया, आपने सोचा कि भई वो इंसान थका हारा आया है, उनको पता ही नहीं कि मैं सुबह से उनके लिए खाना बना रही हूँ। सो ऑब्वियसली हाउ विल ही कम टू नो दैट आई हैव टेकन सो मच ऑफ पेन एंड मेकिंग समथिंग गुड फॉर हिम, राइट? सो उन्होंने बस एक अपना पर्सपेक्टिव रखा कि भई थोड़ा-सा नमक ज़्यादा लग रहा है, सो नेक्स्ट टाइम आई कैन मेक चेंजेस सो दैट इट बिकम्स बेटर, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनके लिए कुछ बनाना ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, पॉज़ करना है और ये सोचना है कि व्हाट इज़ देयर फॉर मी टू लर्न, नो? कई बार जब हम हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हर्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, खास करके वो रिश्ते में जहाँ पर जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। और बहुत ही अच्छा रिश्ता जो एक सास बहू का होता है, राइट? मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। तो एक बहू जो थी वो नई नई घर में आई थी और उसने मतलब उसके दिल में यही था कि भाई मेरे को बहुत अच्छी बहू बन के रहना है। तो उसने अपने घर में सबसे शी ट्राई टू बी द बेस्ट बहू, ना? शी ट्राई टू डू ऑल द काम, सारे घर के काम किए, सफाई, खाना बनाया, ये वो। और फिर थोड़ी मतलब शाम हुई तो उनके मदर इन लॉ आए, तो ये थक गए थे, मतलब जो डॉटर इन लॉ थी शी वाज टायर्ड। सो शी वाज सिटिंग एंड शी वाज हैप्पी कि भई अभी मदर इन लॉ आए, नाउ शी इज़ गोइंग टू praise for whatever I have done. She will be happy to see that the work that I have done, like that, right? Now जब क्योंकि वो डॉटर मदर इन लॉ का पर्सपेक्टिव क्या था कि डॉटर इन लॉ ने खड़े रहना चाहिए, जब मदर इन लॉ आती है तो daughter in law should stand up to respect her mother in law, right? तो she did not get up and the mother in law said कि भाई क्या तुम्हारे घर में यही सिखाया गया है, हमारे घर में ये नहीं चलेगा। दैट इज़ वॉट हर मदर इन लॉ सेड। और वो जब बोला तो वो एक ऐसे तीर की तरह उसके दिल में लग गया, यू नो। एंड शी फेल्ट वेरी मच हर्ट एंड वेरी डिफेंसिव ऑल्सो। अब she could have reacted or she could have responded. So, what story you tell at that particular moment is what decides the course of action, right? तो दो चीज़ हो सकती है, या तो फिर वो वहीं के वहीं ये बोल सकते हैं कि हाँ हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, या फिर गुस्से में आके बोल सकती है, राइट? और दैट इज़ रिएक्शन। या फिर वो रिस्पॉन्ड कर सकती है, एन इंटेंशनल रिस्पॉन्स। तो थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव चेंज करके कि you just burn your ego at that time and maybe you can say that you can tell yourself कि शायद उनकी पुरानी एक्सपेक्टेशंस रही है, फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर नहीं है। Because you know many times hurt people and that is why we need to understand that they are hurt, that is why they are doing this to me. When you change that perspective, what will happen is you will not get hurt at all. काम और रिस्पेक्टफुली आप रिप्लाई कर सकते हो, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे घर में ये नहीं होता है। एंड वेन यू किल योर ईगो टू बिल्ड रिलेशनशिप यू विल लिव इन पीस। तो जब आप कब एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सामने वाला जो सोचता है अरे ये कैसी बात कर रही है, दे आर शॉक्ड टू हियर दैट, यू नो, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट थिंग फ्रॉम अस। मैनी टाइम्स जब कोई गुस्से में होता है और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, उनका गुस्सा शांत हो जाता है। आपने देखा है, डिड यू एवर नोटिस इट? सो that is the benefit of not reacting but responding. And whatever you respond, you are responding not from the from anger, but you are responding by uh, consciously aware of what you are speaking, and you are in your aligned being. Okay, so you can either react or respond to the story you tell yourself, and that will decide your outcome, right? So there are three pillars of emotional mastery. First is awareness, यानी जागरूकता। जो चीज़ दिखेगी नहीं वो ठीक भी नहीं होगी। अपने ट्रिगर्स नोट करिए, कौन से सिचुएशन को आपको बहुत गुस्सा आता है, हर्ट होता है, या फिर आपको स्ट्रेस होता है,
तो उसका आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है। सो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इमोशनल मास्टरी। सेकेंड इज पॉज एंड रिफ्रेम। कई बार देर इज़ एन इंसिडेंट, फिर आपको एक ये होता है, एक बीच में एक टाइम होता है जहाँ पर आप पॉज कर सकते हो, और या मतलब वहाँ पे आप रिएक्ट कर सकते हो या रिस्पॉन्ड कर सकते हो। वो एक छोटा सा टाइम होता है, और फिर जो उसके बाद में जो होता है वो एक आउटकम होता है, राइट। तो ये जो पॉज जो होता है वो हमारे हाथ में होता है। देर आर थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल, देर आर थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो जो पॉज और रिफ्रेम होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में होता है। सो जब आप पॉज करते हो, पॉज का मतलब होता है जब कोई इंसान आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, या जब कोई इंसान आपके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा हो, what is the best thing to do is leave that place. Maybe you can say please excuse me, जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा तब हम बैठ के बात करेंगे। That is the best way to do, and just leave that room, that leave that place, and go to another room and do some, make yourself busy in something else. Because when someone else is angry and you are also get angry, what is happening? You both are angry souls, and you don't know the role. You are just focused on the role, not on the soul. When you are like उन्होंने AK-47 चलाई और यहाँ से पिस्टल चली, so दोनों जगह से ये हो रही है, यानी उन्होंने मेरे पर वार किया तो अब मुझे उसका जवाब देना ज़रूरी है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट वी कैन डू इज जस्ट पॉज। पॉज कैसे कर सकते हैं? जस्ट लीव दैट प्लेस, इधर गो इन योर वॉशरूम, इधर गो टू योर ओन रूम, और गो टू सम अदर प्लेस वेर यू कैन, सो दैट यू कैन जस्ट अपने आप को शांत कर सको। और जब वो शांत हो जाते हो ना, तब हमको समझ में आता है कि हुआ क्या। और जब हमको एहसास होता है कि भाई हाँ, ये जो जो चीज़ भी हुई, इट वाज जस्ट ट्रिगर पॉइंट, और मे बी कुछ पहले कभी कुछ हुआ था जिसके वजह से ये ट्रिगर हुआ है, या फिर ये रिएक्शन हुआ है। सो ऑलवेज पॉज करने में फ़ायदा है दोनों का। आपका भी फ़ायदा है क्योंकि वो जो सामने वाला इंसान है वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, और आप अपने पीस को पकड़ के रख रहे हो। आप अपने आप को, मतलब है ना, यू आर नॉट लेटिंग योर सेल्फ गो विद द इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। रिस्पॉन्ड विथ इंटेंशन, इरादे से जवाब दीजिए। रिएक्शन तो इंस्टिंक्ट है, और रिस्पॉन्स विजडम है। तो अपने वर्ड्स और एक्शंस चूज करें इंटेंशनली। अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन देने से ही इमोशनल मास्टरी मिलती है। सो चलिए एक शॉर्ट प्रैक्टिस करते हैं। इफ़ यू आर देयर, आई वुड लाइक यू टू क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद करिए, और रीसेंट कोई भी एक ट्रिगर पॉइंट हुआ हो, यानी कोई भी एक इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ में जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा है, या फिर सामने वाले इंसान ने आपको गुस्सा दिलाया है, या फिर सामने वालों के गुस्से की वजह से आप भी गुस्से में आ गए हो, समथिंग दैट हैपेंड दैट एक्चुअली ट्रिगर्ड योर एंगर, ओके। उस चीज़ को याद करिए, तो उस सिचुएशन को याद करिए। क्या सिचुएशन था? Were you hurt? Were you angry? Were you disappointed? अब गहरी सांस लीजिए, और उस ट्रिगर को याद करिए। किस चीज़ की वजह से वो ट्रिगर हुआ? उन्होंने वो क्या बात कही थी जिससे आपको एकदम गुस्सा आ गया है ना, स्पार्क लाइक दिस। और जज मत करिए, मन में बोलिए, मैं अपने ट्रिगर से बड़ी हूँ। आई चूज पीस ओवर गेटिंग अफेक्टेड। आई लेट go, not because I'm afraid, but because it no longer serves me. मैं अपने ट्रिगर से बड़ी हूँ। I choose peace over getting affected. I let go, not because I'm afraid, but because it no longer serves me. I want to be free of the weight and burden of the hurt and guilt I'm carrying for years. I want to be free of the weight and the burden of the hurt and the guilt that I'm carrying for years.
आप धीरे से अपनी आंखें खोलिए और शेयर विथ मी इन द चैट बॉक्स, हाउ आर यू फीलिंग? कुछ हल्का लगा, बेटर लगा? जस्ट ट्राई दिस, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। Because many times whenever we carry certain things in our body, it affects us. Any disease in our body creates a disease in our body. और हम सोचते हैं कि भाई it must be in our genes, or it must be because of some stress, or it must be because of outer things, but it's not because of that. Mostly it is because of what we are carrying inside us. दोस्तों याद रखो, रियल रावण जो है हमारे अंदर है। गुस्सा, ईगो, पुराने दर्द, और असली वेपन है इमोशनल मास्टरी। सो ये सारे अफर्मेशंस याद रखिए। मैं अपने इमोशंस की मालिक हूँ। मैं पॉज करती हूँ और समझ के जवाब देती हूँ। मैं इमोशंस पे जीत कर अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। जब आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हो, आप सिर्फ मूड नहीं, अपना फ्यूचर भी मास्टर कर लेते हो। सो अगले 7 दिन हर दिन एक ट्रिगर नोट करिए, और आपने उस टाइम पे क्या किया, एक अवेयरनेस अगर आपने रख लिया कि भाई हाँ, ये जो ट्रिगर पॉइंट था इसके वजह से मुझे गुस्सा आया। एक फर्स्ट स्टेप जो है वो अवेयरनेस है। सेकेंड स्टेप है कि आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे, आप उस समय वहाँ से निकल के बाहर चले जाओगे। डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड। कि आप जब शांत हो जाओगे, देन लेट्स टॉक अबाउट इट। फिर वो कोई भी हो, या आपके सास हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपके बॉस हो, या आपके फ्रेंड हो। लेट्स टॉक व्हेन यू आर फीलिंग बेटर, व्हेन यू आर फीलिंग गुड। और फिर आप देखिए कि किस तरह से आपका जो रिश्ता है वो एक रिस्पेक्ट वाला रिश्ता हो जाता है, जहाँ तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। अपने रिफ्लेक्शंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए।